2010 के बाद हम लेफ्ट पे मूव होने शुरू कर गए, और देन ऑल द वे वी गॉट आवरसेल्फ ऑल ऑफ सडन वी फाउंड आवरसेल्फ बीइंग अ डेमोक्रेट, and then we are dominant as a democratic party So, workers. is there a salvation for the Republicans because they're not being an American, looking outside from the outside into the American politics? My opinion, also being active in politics in Norway, I would say carefully that the USA seems very kind of lost in their ways. There is no way back for the Republicans. Maybe the way back would be a third option that wouldn't call themselves Republicans. Or do you think that the Republicans can and will stand up and be the kind of good old Republicans before Bush, or even in no Trump them? Say that. So ट्रम्प के सबसे बड़े नकाद इज द वर्ड, राइट? नकाद कहते हैं Yeah. उसको। हाँ, आप एलिस जुबान वाले को बताएं, मैं तो पठान आदमी हूँ। याद भाई से पूछे। Yeah, मैं भी पठान हूँ यार, मुझे इसलिए कम पठान ना समझे। ट्रम्प के जो सबसे बड़े जो उसको पुश बैक कर रहे हैं, दे आर ऑल रिपब्लिकन्स, ऑल ऑफ देम। डेमोक्रेट कोई नहीं कर रहा उसको, मतलब, और वो करेगा तो दे आर नॉट इफेक्टिव, वो तो अपोनेंट्स हो गए ना। लेकिन जो वहां के रहने, जो उनके बीच में से जो लोग जो एक्चुअली ट्रम्प को पुश बैक कर रहे हैं, इन पॉलिसीज को पुश बैक कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली रिपब्लिकन्स। तो इट्स ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी में अभी कुछ हुआ तो इट गॉट हाईजैक्ड और अब कोई रिपब्लिकन नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। आज की तारीख में भी बिकॉज इफ यू लुक एट इट, जो रिपब्लिकन वैल्यूज हैं वो कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं, और वो उसमें दे आर मोर इन लाइन विद जूइश एंड मुस्लिम्स, जो हमारी वैल्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी पॉलिटिक्स जो है, दोज आर एक्सट्रीमिस्ट, और उसकी वजह से हम उस तरफ जा रहे हैं जो कि अदरवाइज हम कहें कि यार ये किन लोगों के पीछे, लेकिन बट वी बिकम डेमोक्रेट्स बिकॉज जो रिपब्लिकन्स ने खुद से किया है। वी डिडंट रन टू रिपब्लिकन्स, द रिपब्लिकन पुश्ड अस अवे, दैट्स व्हाट हैपेंड। हाँ, उन्होंने हमें पुश किया, हम भागे नहीं गए उनकी तरफ, बट towards Democrats, the Republicans push us away. ये कोई ऐसा अगेन अमेरिकन उसकी जो लाइफ वो है ना, उसकी ब्यूटी ये है कि एट सम पॉइंट आप जो एक इमिग्रेंट की पॉलिटिक्स है ना, वो ट्रांजिशन हो जाती है बाय द टाइम यू आर इन योर सेकंड जनरेशन। The second generation becomes, and they look at it the way Mamdani looks at politics, or any other young Republicans, the way they look at it, because then it becomes a left and right, a conservative and a liberal. तो उस साइड पे चले जाते हैं, और उसके बाद कोई कितना लिबरल है या कोई कितना कंजर्वेटिव है, दे आर जस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेनबो, राइट? लेकिन हैं वो लोग एक ही जैसे होते हैं। सो दैट्स व्हाई कभी बहुत ज्यादा अच्छे लोगों और जो बहुत पैसा लगाया उन्होंने, थर्ड पार्टी की इनिशिएटिव की उन्होंने, इट्स जस्ट नॉट देयर। मतलब लेफ्ट एंड राइट है, मैं कहाँ अपने आप को फिट करूं, Like US being a very progressive country, obviously, like kind of anywhere they're just mentioned on any platform. So aap log, or an average American citizens, don't they ever think that maybe middle would be like, your social system is very different to our social system. We have a kind of, me and Shoaib, we can talk a lot of Norwegian politics, but the fact is that we are indeed living in one of the world's most lenient, how to say, the most peaceful or the most nice country for anybody to live in terms of the social system, in terms of health policies, in terms of anything. So America being this progressive nation in the world, जिनके पीछे सब भागते हैं, यानी कि what America says is what's been doing and done. So don't you think कि ये left or right की जो आपकी politics है, it should indeed be a place where you should have somebody called, like my party, Centrum, like in the center. हाँ, वो आई थिंक द वे वी लुक एट इट, मैं अमेरिकन स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये हो जाएगा तो वो कहेंगे ये कम्युनिस्ट आ गए यहाँ पे। we cannot be a single party, we cannot be a single party Look, system. third option.
I was thinking about the third option, being the middle, that you don't have to be left or right, but stay in the middle where you could just, kind of go for the policies, not for the lefties and not for the righties. Just go for the policies. I don't know. Again, I'm not a Ziad bhai इस पे ज़्यादा वो करेंगे. क्या I'm not. प्रयास करिए? I'm not a poetic or वो वाली बातें. लेकिन अगर मैं just to entertain everyone के ये तो हमारी आई थिंक इट्स विद इन एज ए ह्यूमन कि हम जब दो बंदे हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली हम लेफ्ट एंड राइट डिसाइड कर लेते हैं वहीं पे. Yeah. इट्स ये मुश्किल. Proud, huh? हाँ अब आदम के बाद से हमने शुरू कर दिया था. Yeah, तो true, आई थिंक इट्स true. ऑलरेडी डिसाइडेड. तो हमारे लिए इस सिस्टम में ये कि हम एक सिस्टम को फॉलो करें, it's just not going to happen. हम लोगों की पेडिग्री डिफरेंट है. हम लोग एक 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 डिफरेंट उससे आता है. वो अपने आप को ओनर ऑफ द लैंड समझते हैं, दूसरे अपने आप को इमिग्रेंट समझते हैं, और उसकी वहीं से एक टसल शुरू हो जाती है. दैट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. मजे की बात यह है कि एट सम पॉइंट जो इमिग्रेंट्स हैं वो अपने आप को जो है वो ओनर समझना शुरू कर Owner देते हैं. समझने लगते हैं, yes. और लेकिन नए इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं बेचारे, तो बस अब उनकी बारी आ जाती है. बट दैट्स व्हाट इट इज. आई जस्ट डोंट सी. मेरा तो सिर्फ 36 साल का एक्सपीरियंस है. आई मीन आई एम श्योर कुछ लोगों का ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा नस्ल उस पर होगी. मुझे इसमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आता कि कभी भी अमेरिकन एक सिस्टम या 3 सिस्टम में से जो है वो सेंट्रिस्ट की तरफ जाएं. आई थिंक राइट अवे दे विल बी ब्लेम्ड फॉर सम हेरेसी, इस तरह की बातें कर रहे हैं हम. तो आई जस्ट डोंट सी अ फ्यूचर इन दैट. जियाद भाई आप क्या कहते हैं? मैं उसमें थोड़ा सा जी ऐड कर देता हूँ. देखिए इसमें ना ये सदियों से एस्टेब्लिश्ड एक है प्रैक्टिस. अब शिफ्ट कितनी ज्यादा उसमें आई है वो अब ये देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी ना, ये ओरिजिनल फाशिस्ट और रेसिस्ट पार्टी होती थी. कू क्लक्स क्लान यस, जो कालों पे उन्होंने लिंचिंग की और उन्हें मारा, और बिल्कुल. ये सारे डेमोक्रेट्स किया करते थे. अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एवर, ही वाज अ रिपब्लिकन. very true. Yeah, स्लेवरी के खिलाफ जिसने जंग लड़ी थी वो Was it- अब्राहम रिपब्लिकन था वो. सो शिफ्ट ओवर टाइम जो ना 200-250 साल की आप बात कर रही हैं, शिफ्ट आना इसमें होता है. जब आप फास्ट फॉरवर्ड करें जिमी कार्टर के बाद से अमेरिकन पॉलिटिक्स ने एक नया टर्न लिया है. पहले भी आती रही है. जो ह्यूमंस देखिए कभी भी हार्ड स्टैंड नहीं होता, हमेशा एक स्पेक्ट्रम होता है. जहां भी ग्रुप होगा, सेंटर कभी भी नहीं बन सकता जब तक आपके पास लेफ्ट और राइट नहीं होंगे. Of course. जैसे लीडर कभी भी नहीं बन सकता जब तक फॉलोअर नहीं होंगे. फॉलोअर होंगे तो इसी तरह आपको राइट और लेफ्ट चाहिए सेंटर बनाने के लिए. और हर ग्रुप में, हर पार्टी में मुतदिल मिजाज लोग भी होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, रेडिकल्स भी होते हैं उसमें. अब आप देखिए कुछ अरसा पहले रिपब्लिकन पार्टी में टी पार्टी एक आई थी जिसमें बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बच्चियां थी. उस दिन मैं और शुएब बात कर रहे थे. मिशेल बाखमैन थी उसमें, क्रिस्टीन ओडानल थी, और आपकी सबसे फेवरेट सेरा पैलन थी उसमें. उन्होंने टी पार्टी बनाई. टी पार्टी काफी इन्फ्लुएंशियल हुई थी, और वो उनका स्टैंस ये था कि यार आप लोग कंजर्वेटिव एजेंडा को हार्ड पुश नहीं दे रहे हैं, आप लोग वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए. तो दैट वाज अ रेडिकल ग्रुप उस टाइम पे. उसके बाद फिर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट आई डेमोक्रेट्स की साइड पे. यार आप लोग कैपिटलिस्ट बनते जा रहे हैं, आप लोग भूल रहे हैं अपना जो ओरिजिनल आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का उस टाइम पे लिबरल मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं. वो टी पार्टी हैड मच बेटर सक्सेस क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्होंने ज्यादा हिस्सा लिया. वॉल स्ट्रीट वाले जो डेमोक्रेट्स थे ये नखरे करते रहे, गिटार बजाते रहे वहां पे. एक इन्होंने गिटार आर्मी बना ली थी, गिटार आर्मी, वहां जाके गिटार कौन सुनता है. एनीवे, अब फिर उसके बाद आप देख रही हैं अब बर्नी सैंडर्स और ट्रंप का राइज जब हुआ है ना, वो हुआ है सिटीजन यूनाइटेड. एक यहाँ पे रूलिंग आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो कैंपेन फाइनेंसिंग के बारे में थी. उसमें मुख्तसरन ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मर्जी जितने मर्जी पैसे दे, कोई परवाह नहीं है. उसके बाद से कॉरपोरेशंस ने पैसा डालना शुरू किया इसमें. और ओबामा जितना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग लीडर और जितना रिफाइंड आदमी था, उसने उसे एज एन अपॉर्चुनिटी या तो देखा, या उसने ये देखा कि जी डेमोक्रेट्स अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे रह जाएंगे. तो ही वेंट ऑल द वे. उसने डेमोक्रेट पार्टी को
पूरी तरह से बेच दिया, पूरी लिबरल मूवमेंट को उसने कर दिया खत्म। तो वहां से राइज हुआ फिर ट्रंप का और बर्नी सैंडर्स का। ये दोनों बाहर के लोग हैं। बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेट पार्टी में नहीं है, वो इनके साथ कॉकस जरूर करता है, लेकिन वो बाहर इंडिपेंडेंट आदमी है। ट्रंप तो किसी के साथ भी नहीं। रिपब्लिकन्स को समझे उनके साथ हाथ हो गया जब ट्रंप आके रिपब्लिकन पार्टी का लीडर बन गया। वो तो बड़े अरसे तक सोच रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो इन दो पार्टीज के होते हुए इनमें ये मूवमेंट्स उठती रही। और अब आप देख रही हैं कि ममदानी बर्नी सैंडर्स से शुरू होके ये सारी वो अफोर्डेबिलिटी का प्लेटफॉर्म है। ट्रंप और बर्नी सैंडर्स का राइज इसलिए हुआ था कि लोग समझ रहे थे कि यार ये हम लोगों को तो बिल्कुल भूल गए हैं, कॉर्पोरेशंस आ गई हैं और इंटरेस्ट आ गई हैं। और 50-60 साल में पिछले इसराइल का इन्फ्लुएंस ओवर टाइम बढ़ता गया यहाँ पे। तो उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो डेमोक्रेट्स हो, उसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। अब जो आप पुश देख रहे हैं, लोगों ने देख लिया कि यार ये ट्रंप को लाए थे, बर्नी सैंडर्स को डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने किल कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कॉर्पोरेट डेमोक्रेट्स आगे आए। तो ट्रंप को मौका मिल गया, ये रिपब्लिकन का बन गया। लेकिन ट्रंप अपनी नस्ल का वाहिद आदमी है, तो ये और ही डायरेक्शन में ले गया। अब रिपब्लिकन भी परेशान है कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया है। डेमोक्रेट्स जो बर्नी सैंडर्स को अगर ना किल करते तो डेमोक्रेट्स वुड हैव टेकन दिस कंट्री टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बर्नी सैंडर रिफ्यूज टू डाई। प्रोग्रेसिव मूवमेंट की, जिसे आपने पहले कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहने की कोशिश की थी, लेकिन बस सिंपल पीपल्स मूवमेंट। बर्नी सैंडर ये कहता था कि आप कॉर्पोरेशन को सारे टैक्स के पैसे देने के बजाय और इसराइल को देने के बजाय आम लोगों पे लगाएं। तो उसका सही मुजाहिरा हुआ है जब जोरान ममदानी जीता है। एओसी वगैरह पहले इक्का दुक्का जीते रहे इधर उधर, लेकिन फुल फोर्स आपने न्यूयॉर्क में ये देखा है। जोरान ममदानी से ये चीज इतनी तेजी से शुरू हुई कि 3 अगले बंदे जिन्हें जोरान ममदानी ने एंडोर्स किया वो जीत गए। अब अब्दुल को आप देख रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड है ये चीजें, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं जो हो रही हैं। तो ये लोगों का एक तरह से एक समझे अदम इत्मीनान का वो इजहार कर रहे हैं बार बार कि यार हमारा क्या हुआ इस पूरे सिस्टम में, हम कहाँ गए, ठीक है ना। पाकिस्तान में आप देखिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भुट्टो जब भी प्रोग्रेसिव वो एक तरह से एटलीस्ट उसने क्लेम किया था और उसने कई काम ऐसे किए थे, सारे मौलवी और राइट विंगर इकट्ठे हो गए थे इकट्ठे। और जब भी इन्हें मौका मिलता है तो इवेंचुअली 2 फोर्सेस रह जाती हैं। आप चाहे आप उन्हें इवल और गुड की फोर्सेस कह लें, चाहे राइट और लेफ्ट की कह लें, जो इवल और गुड उनका चेंज होता रहता है, लेकिन ये कि इवेंचुअली एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आके लोग इकट्ठे होते हैं। अब ऑफ कोर्स आई कैन गो इनटू डिटेल एंड से कि जी बर्नी सैंडर्स ने क्या गलतियां की, उसे जिल स्टाइन्स के साथ मिलके उस टाइम पे थर्ड फोर्स बना लेनी चाहिए थी जब डेमोक्रेट्स ने उसे किल किया था। तो उन्होंने कहा जी हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रेसिव की या लोगों की बात करने वाले बंदे की जगह नहीं है, हम पूरी तरह से कॉर्पोरेशंस के और इसराइल के कंट्रोल में है, हम वहां से चलना चाहते हैं। अब आप देखिए कि ट्रंप से रिपब्लिकन तंग है, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट से डेमोक्रेट बेस शिफ्ट हो गई है। डेमोक्रेट्स की बेस जो है वो प्रोग्रेसिव की तरफ शिफ्ट हो गई है। वो लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, और बुनियादी उसकी वजह ना गजा है, ना मुसलमान है, ना कोई और है। बुनियादी वजह ये है कि हमारे पैसे थे, हमारे पैसे ये आप कहाँ ले जाके किस किस को दे रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए वॉलमार्ट में जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना वॉलमार्ट शॉपर्स का, वो वॉलमार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये इतना बुरा हाल है ये, ठीक है ना। तो अमेरिकन बड़े रिजिलियंट लोग हैं, ये लोग हमेशा से मुखालफत करते रहे, राइज करते रहे। ऑफकोर्स सिस्टम में टाइम लगता है चीजों में, जहां पे आप अदालतों में जज पॉलिटिकल बेसिस पे लगाना शुरू कर देते हैं, वहां इसका मतलब है आपके सिस्टम को आप इफेक्टिवली हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें ही आपकी शख्सी आजादी की और आपके ह्यूमन राइट्स की और आपकी डेमोक्रेसी की जमानत देती थी, अब वो नहीं देती। अब अदालतों के फैसले देख लें, वो ट्रंप डिसाइड करता है। जहां पे कहीं वो सिंबॉलिकली या ऑप्टिकली छोटे मोटे इधर उधर के डिसीजन दे देती हैं ट्रंप के खिलाफ, तो उसे वो सरकमवेंट कर लेते हैं फिर वो। अभी एक रिसेंटली ये फूड कंपनी का मेरे ज़हन से नदीम भाई नाम निकल गया, आपको शायद याद हो, जो 6-7 बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है मैकडॉनल्ड्स वगैरह को इन्हें फूड सप्लाई करती थी, उनके फूड में कोई इशू था। ये वो था अभी रिसेंटली सैलड लेटस का वो था एग्जैक्टली जी हाँ, तो कंपनी के मेरे ज़हन में नाम नहीं है। अब्दुल ने उसे कैंपेन के एक इश्यूज में शामिल किया। उसने कहा यार उनके टेस्ट के रिजल्ट व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, वो लोग पैसे दिए हैं उन्होंने, बड़ी कंपनी है, उनके पास पैसे हैं, और 6-7 बड़ी बड़ी कंपनियां जाहिर जिन्हें वो सप्लाई करते थे वो उनके साथ है, तो कंज्यूमर का तो बेड़ा गर्क हो गया ना।
कंज्यूमर का बेड़ा गर्क हो गया, इन्होंने कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, डिसीजन रिवर्स हो गया, तो लोग एक्चुअली उसके खिलाफ उठ रहे हैं, बोथ रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। तो जहाँ अमेरिकन सिस्टम में आपको जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, ऑब्वियसली 2 प्लेटफॉर्म है, अगर तीसरे चौथे पांचवें प्लेटफॉर्म आ भी गए ना, तो इलेक्शन टाइम पे इकट्ठे हो जाएंगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल अलायंसेस बना के उसके साथ चलेंगे। जी नदीम भाई। बस अब लुक एट 12:30 हो गए हैं। मैं जरा माजरत चाहता हूं। मैं एक 5 मिनट हमें और दीजिए, हम जरूर 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 राउंड सरित पूरी तरह से कर लें। जरूर जरूर आपका कोई क्वेश्चन है? आप लेट आई थी। बट आई वुड लव टू, अगर आप मौका दें तो थोड़ा जरा प्रिपरेशन के साथ में आई थिंक वी कैन Absolutely, वी हैव टू इनवाइट यू अगेन। आपके हम पूरे बिजनेस मॉडल, आपकी इंस्पिरेशन, जो आपने इतना इतना अनोखा काम किया है, बहुत कम लोग इसमें जाते हैं, मोस्टली लोग एस्टेब्लिश्ड लाइंस ऑफ बिजनेस में घुसते हैं, तो आपने बहुत ही एक डिफरेंट किया, तो उस पर हम पूरा पूरा आपसे करना चाहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को रोल मॉडल्स और लीडर्स की जरूरत है। हमारे प्रोग्राम का मकसद पॉलिटिकल एनालिसिस वगैरह हम जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी शख्सियत को सामने लाना, उससे ताकि हमारे नौजवान फायदा उठा सकें, आपके तजर्बात से सीख सकें, आप जिन मुश्किलात से गुजरे हैं उन्हें समझ सकें। मुश्किलात से गुजरे बगैर कोई तरक्की नहीं होती, कोई इनोवेशन, कोई इन्वेंशन नहीं हो सकती, तो हम वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास सवाल है, जब तक कि शोएब और समीना क्वेश्चन अपने इकट्ठे करते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस एक मूवमेंट है, आप उसका हिस्सा हैं, हम भी उसका, हम सब लोग उसका हिस्सा हैं। आपने क्यों पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस को ज्वाइन किया, और आप कहाँ देख रहे हैं इस मूवमेंट को जाते हुए, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है अभी तक? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक रोल है, और एज 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 अ वर्कर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एन एक्टिविस्ट, हमें अपने सिस्टम्स को समझना, उसमें एंगेज होना, और फिर उसको इन्फ्लुएंस करना, ये बहुत जरूरी है। दैट शुड बी इन द बैक ऑफ आवर हेड एंड वर्क टुवर्ड्स इट। मेरी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है CECS, जिसका जो पेडिग्री जो उसकी है, वो तो एक सोशल वर्क के हिसाब से थी, लेकिन क्योंकि उस सोशल वर्क को इफेक्टिव होने के लिए मेरी पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, ताकि मैं जो सर्विसेज हैं बड़े आराम से ले सकूं। तो उस प्रोसेस में मैंने क्या देखा कि मेरे सामने कुछ चीजें आ गई। The one thing that affected us was इमरान खान रिमूवल, और मैंने उस तरफ देखना शुरू किया कि मैं यहाँ पे बैठ के कौन सी चीजें मैं कर सकता हूँ जहाँ पे रिजल्ट उसकी तरफ जाएगा। सो मैंने जो हमारी फॉरेन रिलेशंस कमिटीज हैं, जो कांग्रेस की और सेनेट की, उनके नाम देखने शुरू कर दिए। मैंने देखा कौन कौन वहाँ पे हैं। फिर मैंने ये देखा कि कैसे मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। फिर मैंने जो जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि FBI हो गई, US अटॉर्नी ऑफिस हो गया, US स्टेट डिपार्टमेंट हो गई, उनसे एंगेजमेंट शुरू कर दी मैंने। और मैंने वो काम किया इस लेवल से कि मैं ऐसा ना हो कि मैं पहले दिन जाके कहूँ कि भाई आप सब इमरान खान को रिहा करें। मैं चाहता था कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा बनूं, और उस सिस्टम से वो सर्विसेज उस टाइम पे एट सम पॉइंट इनेबल करूं अपने आप को, कि वो रिजल्ट करें ऐसी चीज़ों में जहाँ पे इमरान खान जैसे लोग रिहा हो जाएं। सो दैट वाज माय मेरी इंटेंशन। एक मैं इंटेंशनली उस की तरफ काम करने लगा। और उमर ने और सबरीना ने और सब कुछ दोस्तों ने, दे सॉ माय एक्टिविटीज। उन्होंने व्हेन दे विल मेरे ख्याल में एंगेज करते थे किसी चीज पे, तो वो पता चलता था उनको कि नदीम का किस तरह कोई इवेंट हुआ कांग्रेस वुमन के साथ। जूली जॉनसन जो थी उस जमाने में, ये इसमें थी फॉरेन रिलेशन में। फिर मेरा अपना जो कॉन्टेक्ट थे ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ, तो उनको मैंने एंगेज किया कि कैसे लॉबिंग उनके थ्रू की जाए, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि बहुत बुरा हो रहा है पाकिस्तान में, मैं किसी एमनेस्टी इंटरनेशनल के किसी एग्जीक्यूटिव से ये बात करवा दूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। सो दोज आर द डायरेक्शंस दैट आई टुक। और कुछ दोस्तों ने देखा उसको, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, तो अमेरिका की तरफ से आप उसका हिस्सा बने, एंड दैट्स हाउ वी गॉट टुगेदर। एक्सीलेंट। सो इमरान खान की तरह आपने भी ये फैसला किया कि सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जाए, अनटिल सिस्टम आपका जीना अजीरन ना कर दे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही।
अच्छा ऐसा ही है जी। जी ईश्वर नहीं, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह दिखाया और बताया, मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे देखने वालों के लिए सीखने की है, वो ये है कि एंगेजमेंट बहुत मुख्तलिफ लेवल पे हो सकती है, लेकिन उस हर तरह की एंगेजमेंट में सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अलायंसेस बिल्ड करें। जिन लोगों के साथ आपके कुछ मतलब यानी हमारा एक कभी-कभी मसला होता है कि हम कहते हैं, भई जिन 99 बातों पे मैं ज़ियाद भाई से एग्री करता हूँ, उनकी बात ना करें। सिर्फ़ उस एक चीज़ पे फ़ोकस करें जिस पे हम डिसएग्री करते हैं, और इसलिए मैं ज़ियाद भाई के साथ नहीं चल सकता। तो अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो आप कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि 100% मैं कभी-कभी मज़ाक किया करता हूँ कि 100% मैं अपने आप से एग्री नहीं करता। तो कई दफ़ा ये है कि आपको वो पाथ चूज़ करनी होती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम अलायंसेस बन सकें और जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सके, मदद मिल सके। तो सरदार भाई ने कहा आपकी जो बिज़नेस साइड है उसका मुझे पहले इतना नहीं पता था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल में उसको हमें थोड़ा ज़्यादा मौका मिले तो हम आपका इंग्लिश में Sure. वो कहते हैं, थोड़ा मुझे मकाबर लगता है कि पिक योर ब्रेन, लेकिन मेरे ख्याल में ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं कि आप किस तरह एक आइडिया उठाते हैं और उसको सक्सेसफुल उस तक ले जाते हैं, कंक्लूजन तक। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्द आपको दोबारा ज़हमत देंगे। थैंक यू, बहुत-बहुत जी शुक्रिया। समीना से उनके Last question and the ending of the program. Nadeem bhai, जी, जी। we obviously हम सब लोग जैसे ज़ियाद भाई ने mention किया, we are working together in an association, PWA. And I was wondering, you just mentioned Imran Khan, you mentioned your vision, your thoughts. Are you hopeful for Pakistan for the coming future? देखिए, yes, of course I do. Of course. I am not, मैं कोई आइडियलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे पता है, हिस्ट्री की कुछ चीजें मुझे पता है, कुछ चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। पॉसिबिलिटीज जो है ना, पॉसिबिलिटीज और चीजें मुमकिन होना, देयर इज अबंडेंस ऑफ इट। मैं अगर आप आज से 20 साल पहले मैं पीछे चला जाऊं, 15 साल पीछे चला जाऊं, मैं किसी पाकिस्तानी नहीं, मैं किसी भी फॉरेनर जो डायस्पोरा के लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानता जो प्रोएक्टिवली एफबीआई के साथ एंगेज करके कोई इवेंट्स करें जिसको, और जिसके जो ऑडियंस हो वो और डायस्पोरा के लोग वहां पे बैठ के उसको वॉच करें। ये कभी सोचा भी किसी ने नहीं था। इस वक्त आपका भाई जो है वो एफबीआई के साथ डायरेक्ट, इस साल हमने 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे एंगेजमेंट किए हैं फॉर द डायस्पोरा। क्या नियत क्या है यार, आपका क्या इरादा है एफबीआई से? The thing I'm getting it is that कि जब आपकी आपकी नियत चली जाती है उससे कोई काम करने पे, तो पॉसिबिलिटीज आर सो मच, जो कि लोग कहते थे कि कभी क्या बात कर रहे हो तुम, एफबीआई वाले थोड़ी आएंगे तुमसे बात करेंगे इस तरह की। वहां पे 4 एफबीआई वाले बैठे होते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है, यू नो। सो इट्स देयर, द पॉसिबिलिटीज आर देयर। आप एंगेज करें, आपका जो विजन है उस विजन को फॉलो करें। नहीं होगा तो विजन को थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो हम रिसोर्सेज थोड़े चेंज कर लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन व्हाट आई कैन नॉट डू कि मैं ये कहूं कि यार कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ो, दैट आई कैन नॉट डू। एक्सीलेंट। नदीम भाई, आपने ये शुरू में कहीं पे कहा था कि मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम के स्पिरिट में जो चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है, वो इंक्लूसिविटी है। आप उसे प्रैक्टिकली, आप उसे जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वी वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। प्रॉमिस कि आप इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे और हमें थैंक यू सो मच। अपने थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।